Yes. ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 9 of the Kishkinda Kandam, which is 26 verses. Sugriva tells Rama how challenged to a duel at the dead of night by a demon Mayavati by name, who owed him a grudge on the score of a woman. Vali sallied forth with Sugriva, and following on the heels of the demon, who ran away on seeing him. Reaching the mouth of a cave, asked Sugriva on oath to stay out, himself entering the cave, since Vali did not come out for a whole year, as from the confused din coming out of the cave, and as well as from a stream of blood issuing from it, he concluded that Vali had met his death at the hands of the demon. And closing the mouth of the cave, performing rites to the spirit of Vali, he installed himself on the throne. In the meantime, Vali emerged from the cave and reprimanded Sugriva for having usurped Vali's throne. आज हम किष्किंधा कांड के 9वें सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 26 श्लोक हैं। सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को बाली के साथ अपने वैर होने का कारण बताना। वाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषूदनः पितुर्बहुमतो नित्यं मम चापि तथा पुरा। रघुनंदन बाली मेरे बड़े भाई हैं, उनमें शत्रुओं का संहार करने की शक्ति है। मेरे पिता ऋषि राजा उनको बहुत मानते थे। वैर से पहले मेरे मन में भी उनके प्रति आदर का भाव था। Vali by name is my elder brother. Capable of exterminating his foes, he was held in great esteem by our father, and likewise made much of by me too in the past. पितर् उपरथे तस्मिन् ज्येष्ठो अयमिति मन्त्रिभिः कपीनाम् ईश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः। पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसलिए किष्किंधा के राज्य पर प्रतिष्ठित किए गए थे। Our aforesaid father having died, Vali, who was supremely honored by all, was installed by the ministers on the throne of Kishkinda as the ruler of monkeys, on the ground of his being the elder prince. राज्यं प्रशासतस्य पितृपैतामहं महत् अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत् स्थितः। वे पिता पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और मैं हर समय विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा में रहने लगा। While he justly ruled over his big ancestral kingdom, I remained submissive to him at all times and stood like his servant. मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभेः सुतः तेन तस्य महत् वैरं वालिनः स्वीकृतं पुरा। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मैं दानव का पुत्र और दुंदिबिका का बड़ा भाई था। उसके साथ वालों की का स्त्री के कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था। There was a glorious son of the demon Maya, elder than Dundubi. The said Vali formerly had a bitter enmity with him on account of a woman. स तु सुप्ते जने रात्रौ किष्किन्धाद्वारमागतः नर्दति स्म सुसंरब्धो बालिनं च आह्वयद् रणे। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो गए, मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गजने तथा बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। Arrived at the gate of King Kishkinda at the dead of night, when people were asleep, he, for his part, thundered and challenged Vali to a duel, highly enraged as he was. प्रसुप्तस्तु मम भ्राता नर्दतो भैरवस्वनं श्रुत्वा न ममृषे वाली निष्पपात जवात् तथा। उस समय मेरे भाई सो रहे थे। उसका भैरवनाद सुनकर
उनकी नींद खुल गई। उनसे उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई, अतः वे तत्काल वेग पूर्वक घर से निकले। Hearing the frightful roar of the thundering Mayavi, my brother Vali, who was fast asleep, did not brook his challenge and briskly sallied forth at once. स तु वै निःश्रुतः क्रोधात् तं हन्तुम् असुरोत्तमं वार्यमाणस्ततः स्त्रीभिर्मया च प्रणतात्मना। जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुर को मारने के लिए निकले, उस समय मैंने तथा अंतपुर की स्त्रियों ने पैरों पर पड़कर उन्हें जाने से रोका। Emerged in a fury to kill Mayavi, the foremost of demons, Vali, for his part, was actually restrained from that daring act by the women of his gynecium, as well as by me, whose body was bent low with submission. स तु निर्धूय सर्वान् नो निर्जगाम महाबलः ततो अहमपि सौहार्दान् निःसृतो वालिना सह। परंतु महाबली वाली हम सबको हटाकर निकल पड़े, तब मैं भी स्नेहवश वाली के साथ ही बाहर निकला। Repelling us all, Bali, however, who was possessed of extraordinary might, went forth. Out of affection, I too thereupon sallied forth with Vali. स तु मे भ्रातरं दृष्ट्वा मां च दूरात् अवस्थितम् असुरो जातसन्त्रासः प्रदुद्राव तदा वृषम्। उस असुर ने मेरे भाई को देखा तथा कुछ दूर पर खड़े हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी। फिर तो वह भय से थर उठा और बड़े जोर से भागा। Seized with terror to see from a distance my elder brother Vali stationed in a firm position to give battle, as well as myself, Mayavati forthwith ran quickly for life. तस्मिन् द्रवति संत्रस्ते ह्यावां धृततरं गतौ प्रकाशो अपि कृतो मार्गश्चन्द्रेण उद्गच्छता तदा। उसके भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा किया। उस समय उदित हुए चंद्रमा ने हमारे मार्ग को भी प्रकाशित कर दिया था। While he was fleeing, alarmed for life, we too followed faster. The road was illumined at that time by the moon appearing in the horizon. सस्तृणैः आवृतं दुर्गं धरण्या विवरं महत् प्रविवेश असुरो वेगात् आवाम आसाद्य विष्टितौ। आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था जो घास फूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वह असुर बड़े वेग से उस बिल में जा घुसा। वहां पहुंचकर हम दोनों ठहर गए। The aforesaid demon entered with expedition a large hole in the earth, which was covered with grass and hence difficult of access, while we too stood rooted on reaching the spot. तं प्रविष्टं रिपुं दृष्ट्वा बिलं रोषवशं गतः माम् उवाच ततो वाली वचनं क्षुभितेन्द्रियः। शत्रु को बिल में अंदर घुसा देख बाली के क्रोध की सीमा न रही। उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी और वह मुझसे इस प्रकार बोले। Fallen a prey to anger on seeing his aforesaid adversary having penetrated deep into a hole, Bali thereupon spoke to me as follows, his mind being agitated. इह तिष्ठ अद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः यावत् अत्र प्रविश्य अहं निहन्मि समरे रिपुम्। सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूं, तब तक तुम आज इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। Remain alert at the mouth of this hole today, O Sugriva, till I, penetrating deep into the hole, make short work of my enemy in the course of a duel. मया तु एतद् वचः श्रुत्वा याचितः स परन्तपः शापयित्वा च मां पद्भ्यां प्रविवेश बिलं ततः। ये बात सुनकर मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले वाली से स्वयं भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु वह अपने चरणों की सौगंध दिलाकर अकेले ही बिल में घुसे। Though implored by me to take myself along with him, on hearing this command, Vali, for his part, the scorcherer of his foes, thereupon penetrated deep into the hole, binding me on an oath in the name of his own person to remain outside.
तस्य प्रविष्टस्य बिलं साग्रह संवत्सरो गतः स्थितस्य च बिलद्वारी स कालो व्यत्यवर्तत। बिल के भीतर गए हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया और बिल के दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना ही समय निकल गया। More than a year slipped away since he penetrated deep into the hole, and the same period elapsed even as I remained stationed at the mouth of that hole. अहं तु नष्टं तं ज्ञात्वा स्त्रोहात् आगतः सम्भ्रमः भ्रातरं च प्रपश्यामि पापशङ्की च मे मनः। जब इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ, तब मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफा में ही कहीं खो गए। उस समय भातृ स्नेह के कारण मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मैंने मन में उनके मारे जाने की शंका होने लगी। Since I did not perceive my elder brother with my own eyes all those long months, my mind began to apprehend his death. Nay, concluding him to have been killed by the demon, I, for my part, was overcome by a feeling of misgivings through affection. अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात् तस्मात् विनिश्रुतं सफेनं रुधिरं दृष्ट्वा ततोऽहं वृषदुःखितः। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उस बिल से सहसा फेन सहित खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। Then, on seeing after a long time blood mixed with foam emerge from the aforesaid hole, I felt extremely distressed because of that. नर्दताम् असुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः न रथस्य च संग्रामे क्रोशतोऽपि स्वनो गुरोः। इतने ही में गर्जते हुए असुरों की आवाज भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे बड़े भाई की गर्जना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज मैं नहीं सुन सका। The yell of thundering demons too reached my ears, while the noise of my elder brother, even though he was roaring while engaged in the encounter, did not fall on my ears. अहं तु अवगतो बुद्ध्या चिन्नैः तैः भ्रातरं हतं पिदाय च बिलद्वारं शिलया गिरिम् अत्रया शोकार्तश्चोदकं कृत्वा किष्किन्धाम् आगतः सखे गूहमानस्य मे तत्त्वं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम्। इन सब चिन्हों को देखकर बुद्धि द्वारा विचार करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे बड़े भाई मारे गए। फिर तो उस गुफा के दरवाजे पर मैंने पर्वत के समान एक पत्थर की चट्टान रख दी और उसे बंद करके भाई को जलांजलि दे शोक से व्याकुल हुआ मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। सखे, यद्यपि मैं इस यथार्थ बात को छिपा रहा था, तथापि मंत्रियों ने यत्न करके सुन लिया। By recourse to reason on the strength of the aforesaid indications, I, for my part, concluded my elder brother to have been killed. Nay, blocking up the mouth of the hole with a rock as big as a hillock, and offering water to the spirit of the deceased, stricken as I was with grief, I returned to Kishkinda. O friend, although I concealed the truth, the secret was learnt by the ministers with effort. ततोऽहं तैः समागम्य समेतैः अभिषेचितः राज्यं प्रशातः तस्य न्यायतो मम राघव आजगाम रिपुं हत्वा दानवं स तु वानरः अभिषिक्तं तु मां दृष्ट्वा क्रोधात् संरक्तलोचनः। तब उन सब ने मिलकर मुझे राज्य पर अभिषेक कर दिया। रघुनंदन, मैं न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानव को मारकर वानर राजा वाली घर लौटे। लौटने पर मुझे राज्य पर अभिषिक्त हुआ देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। Having met together and deliberated with one another, I was thereupon installed on the throne of Kishkinda by the ministers in a body. Having got rid of his adversary, the demon Mayavi, the aforesaid monkey, my elder brother Vali, for his part, came home while I was ruling his kingdom with justice. O Scion of Raghu, seeing me installed on the throne, his eyes actually turned crimson due to anger. मदीयान् मन्त्रिणो बद्ध्वा परुषं वाक्यम् अब्रवीत् निग्रहे च समर्थस्य तं पापं प्रति राघव।
मेरे मंत्रियों को उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई। रघुवीर, यद्यपि मैं स्वयं भी उस पापी को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति गुरु भाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। न प्रावर्तत मे बुद्धिः भ्रातृगौरव यंत्रिता हत्वा शत्रुं समे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा मानयं स्तं महात्मानं यतावत् चाभिवादयम् उक्ताश्च न अशिशस्तेन प्रहृष्टेन अंतरात्मना। इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया, तो भी उन्होंने प्रसन्नचित्त से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। Nay, bidding my ministers in chains, he spoke harsh words to them, even though I was capable of restraining that sinful monkey, Vali, Ocean of Raghu. My mind, which was weighed down by a feeling of reverence for my elder brother, did not feel inclined to do so. Having killed his adversary, the said brother of mine forthwith entered the capital in due course. Holding as I did the high-minded Vali in esteem, I greeted him with due reverence. Benedictions, however, were not pronounced by him with a highly rejoiced mind. नत्वा पादावहं तस्य मुकुटेन अस्पृशं प्रभो अपि वाली मम क्रोधात् न प्रसादं चकार सः। प्रभु, मैंने भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण बाली मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। Bowing down to him, I touched his feet with my crown, O Lord. Due to anger, however, the said Vali did not relent. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्टरामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 9 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपतामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Dhanyavad. धन्यवाद।